Biotechnology, you learn about the different diagnostic markers of those diseases. And in biochemistry, you learn about how these causative agents hamper or affect the biochemical and physiological pathways of body. So there are so many disease conditions that start with the genetic and epigenetic levels, जैसे DNA, RNA, proteins, right? So many enzyme deficiency or enzyme upregulation. कोई चीज ज्यादा हो जाना या ज्यादा कम हो जाना, both are detrimental, right? So enzymes are like proteinaceous biocatalysts that have a low activation of energy, so they can easily have a great conversion of substrate into a product. अगर activation energy कम है तो, if they have a higher activation energy, then it requires more time for the substrate to get converted to the product of your or a desired product. Now, the functional unit of an enzyme is a holoenzyme, which is made up of apoenzyme and coenzyme. एक एंजाइम की फंक्शनल यूनिट होती है holoenzyme, and ये holoenzyme is formed by the fusion of apoenzyme and coenzyme. This apoenzyme is the proteinaceous part of an enzyme, while this coenzyme can be a cofactor or a prosthetic group. This coenzyme can be a cofactor or a prosthetic group. So prosthetic groups are tightly bound to the protein, to the enzyme, while cofactors are loosely bound. बस यहीं से आपके 2 से 3 सवाल बस एक इस फ्लो चार्ट से बन गए. Holoenzyme is a functional unit of an enzyme, and there are two components of this holoenzyme, which is apoenzyme and coenzyme. When I talk about apoenzyme, it is a proteinaceous part. When I talk about the coenzyme, it is a of two types. So it can either be a prosthetic group or it can be a cofactor. If it is a prosthetic group, it is a tightly bound to the enzyme. And if it is a cofactor, it is loosely bound to the enzyme. All right. So you must know about this. It is very, very important. It is very, very important. You must know about this. And you all must have a complete information about this chart. All right. Next, enzyme was first used by William Cunney, and the first extract was obtained by Buchan. So Cunney first isolated the enzyme, and then it was achieved by Buchan. Now when we classify the enzymes, अब इस enzyme को जब हमने classify किया कल की class में, so we classified, right? Oxidoreductase, transferase, hydrolase, isomerase. Can you tell me amino acyl tRNA synthetase इसमें से कौन से type का था? Amino acyl tRNA synthetase is a type of what? Out of these, in which category does it fall? DNA ligase, amino acyl tRNA synthetase. Yes, we forgot. कल पढ़ाया हुआ भूल गए. कल कौन सी टीम आईपीएल जीती थी? Yes, ligase, very good. Yes, Ratikanta, are we all there? Kiri, Kanish, हो ना सब? Nobody sleeping, कोई नींद में तो नहीं है कि भैया वीकेंड है छुट्टी है? Okay. So it's a type of a ligase, right? So there are three theories of enzyme: lock and key theory, induced fit theory, and substrate strain theory. Lock and key, अलग अलग ताले की अलग अलग चाबियां होती है. So that tala lock is an enzyme, and to each enzyme a different substrate binds. तो suppose अब अगर ये मेरा एक enzyme है, तो मेरा substrate भी इसी तरीके की ये shape का होगा, है ना? Then only it will fit into it, right?
this kind of. So this is a substrate, which is a key binding to the lock, which is an enzyme. Lock and key. So it's a very rigid, है ना? Lock rigid है ना? Lock flexible है क्या? Lock को आप इधर उधर कर सकते हैं बिल्कुल भी, right? No. So it is a rigid model. Induced fit theory. It was proposed by Koshland. So Koshland says that the model is flexible. So an enzyme has a structure, but if the substrate doesn't bind, it shows a conformational change such that now a substrate can bind. That means शादी के पहले दोनों अकड़ू थे, but शादी के बाद both of them had to become a little flexible, cooperative. थोड़ी देर बच्चे का ध्यान आप रखे, थोड़ी देर हम रखे, right? That is how any relationship works. So flexibility आई. So enzyme became flexible when it came to know that the substrate is going to bind. This is a conformational change which is flexible. That is a major difference between a lock and key and so lock and key was given by Fischer and induced fit was given by Koshland. Okay, substrate strain is not important. Substrate strain बस ये कहता है कि एक substrate एक particular active site पे bind करता है to form an enzyme substrate complex. And then this enzyme substrate complex leads to reaction and formation of a product. And finally, the product leaves from that enzyme, detaches. कहते ना हमारा काम निकलवाने आया, एक बार एंजाइम पे सबस्ट्रेट बैठ गया, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ रिएक्ट कर लिया, काम निकल गया, प्रोडक्ट बन गया, तो अब प्रोडक्ट डिटैच हो जाएगा और उसका सबस्ट्रेट जो था वो भी डिटैच हो जाएगा. So this is a substrate strain theory where the enzyme substrate binds to the enzyme, forming an enzyme substrate complex, leads to formation of a product, and that product then further detaches from an enzyme. Are we all clear till here? Shivani, we have joined late today. Why so? That too 7 minutes late. Yes, Nepal, we have joined 9 minutes late today. Roshan, 10 minutes late. Ashish, are we all good to go? Okay. Now the characteristics of enzyme, they are not that important, but just as a theory purpose, I'm reminding, but not for your examinations. Enzymes have a particular component called as cofactor. So thymine pyrophosphate, nicotinamide adenine dinucleotide, flavine mononucleotide, they are all cofactors, right? They are all cofactors by vitamin B1, B3, B2. These are all examples of cofactors. Enzymes are, of course, heat sensitive. Taq polymerase is an enzyme which can, how much temperature can it withstand? How much it is resilient? 95. Right? They are pH specific as well. They are pH specific as well. Acha, is ribozyme an enzyme? All enzymes are proteins, correct? But not all proteins are enzymes. Is riboenzyme a protein? It's a nucleic acid. How can it be a protein? So there are always exceptions. हम वो statement बहुत चौड़ में बोल देते हैं, right? All enzymes are proteins, but not all proteins are enzymes. But there are exceptions. Ribozyme is not an enzyme, is not a protein. It's an enzyme, but it's not a protein. Riboenzyme. Enzymes also precipitate, so that is because most of the enzymes क्या है? Proteins है. Proteins can denature, coagulate, right? And precipitate. That is their capability or inherent trait to show some conformational changes. Right? So these enzymes, according to the International Union of Biochemistry, are divided into different, Thermus aquaticus, are divided into different categories. Oxidoreductase, where the oxidation and reduction occurs simultaneously. And this is an enzyme involved in glucometer. अगर आप biosensors की बात करें, so glucometer is based on the principle of glucose oxidase.
transferase, hexokinase, transaminase, hydrolase, trypsin. Trypsin, chymotrypsin are your intestinal enzymes, correct? They are responsible for the breakdown. Lactase breaks down lactose, and that is why many people who are lactose intolerant, जो milk नहीं पी सकते, some have celiac diseases, right? जो gluten free खाना खाते हैं because of celiac disease. Because in celiac disease you need good fibers, fiber rich food. Otherwise, if you eat more wheat or any rice, maida, these kind of flour, then it will be causing inflammation of your bowel and gut mucosa, right? Lyase. Lyase is to break down. Ligase means to join. Lyase means to break. So, decarboxylase. Can you tell me which vitamin shows decarboxylation reaction? Which vitamin shows decarboxylation reaction? Pyridoxine, isomerase, conversion from one enzyme or transfer of moves within the same molecule. टोपो आइसोमरेज, जैसे आपने घर लिया तो एक ही बिल्डिंग में दूसरा फ्लोर पे घर लिया, दैट इज आइसोमरेज. दूसरी बिल्डिंग में घर लिया, दैट इज इंटर आइसोमरेज. इंटर आइसोमरेज विद इन द सेम बिल्डिंग. इंटर दूसरी बिल्डिंग में. दोनों का लास्ट ऑब्जेक्टिव इज घर लेना, बट within they're like it's just like intermolecular hydrogen bonding and intramolecular hydrogen bonding, right? Ligase, glutathione, T-isolane synthase. So these are the Ott-Hill classification of enzymes. Now these enzymes show different kinds of inhibition. Reversible inhibition is the most important. So your homework for today, हाँ मैंने कल homework दिया था, magnification power, resolution, limit of resolution. कौन करके आया है? Yes, Arshad, we are late today. कौन करके आया है? Yes, how many of us have done the homework? None. किसी ने नहीं पढ़ा है? हाँ भाई, होमवर्क नहीं करोगे तो कैसे चलेगा माय डियर? एक दिन था सिर्फ 4 डेफिनेशन और 4 फॉर्मूला पढ़ के आने थे. Na इज इक्वल टू एन साइन थीटा, न्यूमेरिकल अपर्चर, एमओ इंटू एमओ, एमओ इंटू एमई, एफओ अपॉन एफई. कितना टाइम लगता है ये पढ़ने में? 10 मिनट, इवन लेस देन दैट. 10 मिनट की रील देखने का टाइम था हम सभी के पास, माय डियर. यस, दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड डिसहार्टनिंग दैट वी आर नॉट कीपिंग अप ऑन द होमवर्क. मेरे जितने प्रीवियस बैच रहे हैं फॉर जीपैट और फॉर एम्स, अगले दिन वो उस होमवर्क को जरूर करके आते थे. आई एम वेरी सैड टू हियर दैट आप लोगों ने किसी एक ने भी नहीं करा है. नो इश्यूज, मुझे क्या है, आपको क्रैक करना है, मुझे कौन सा क्रैक करना है. इसी एटीट्यूड के साथ रहोगे तो फिर कोई इश्यू नहीं. चलिए, इनहिबिशन की अगर हम बात करें, सो वी हैव रिवर्सिबल एंड, अब कल एब्सेंट थे, कुछ भी थे, रिकॉर्डिंग्स है आप सभी के पास. मैंने कल नोट्स भी भेज दिए थे ऑन टाइम आप सभी को. दैट इज नॉट, और इट्स नॉट एन एक्सक्यूज. Reversible inhibition. So reversible inhibition is of 3 types. One can be competitive, where they have compete for the same site. That's called competitive inhibition. Uncompetitive inhibition and non-competitive. Can somebody tell me the difference between non-competitive and uncompetitive? We have already covered an aspect to Vmax and Km yesterday, right? Km increases, Vmax remains the same. Km and Vmax both decrease. Vmax decreases and Km remains the same in these 3. But can somebody classify how competitive differs, or give me example? This is lithium. It's an example of a competitive inhibitor. तो सल्फोनामाइड्स किसका एग्जाम्पल है? कोई मुझे बता सकता है? Anybody who can help me out with an example of sulfonamides? Anybody who can help me out with an example of sulfonamides? That is okay. I am asking you example and what is the difference between non-competitive and सेम ही तो लग रहे हैं.
None of you. Sir, I know the difference between competitive, non-competitive emission, but I did not remember example. Here No I clarify problem. that, yes, sir. Uh, Competitive enzyme inhibitors here agent bind the substrate binding site, directly bind. And in Correct. case of uncompetitive, here the agent bind the enzyme and product binding site. Means, Enzyme and and product binding site or enzyme and substrate complex site? yes, sir, in a subset complex. Yes, Okay. yes, sir. Okay. Good. Non-competitive means other than the active binding site, allosteric site. Other than active binding, which is allosteric site. It can bind over there as well. So Yes. you all must read. अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पढ़ना होगा तो पढ़ना, वरना कोई इश्यू नहीं है कि DHFR कार्बोनिक एनहाइड्रेस, राइट, ये किसके एग्जाम्पल्स है? DHFR कार्बोनिक एनहाइड्रेस ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपको पढ़ के आने हैं, ठीक है? Reversible कॉम्पिटिटिव एंड नॉन, competitive. एंड देयर इज डायरेक्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, इस पार्ट से 60% चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन आने के। तो अगर आप लोग ने ये पार्ट से नहीं करा है तो फिर आप 4 मार्क छोड़कर आइएगा। 4 marks you can donate if you haven't read from this part. Next, you have enzyme inhibition of irreversible types. Irreversible में you have suicidal inhibitors where you have allopurinol, beta lactamase inhibitor. इन्हें suicidal क्यों कहते हैं? Why do we call suicidal inhibitors? Have you all heard a very famous Hindi saying? कोई मुझे हेल्प कर सकता है वो सेइंग के बारे में? जिस थाली में खाना खाया उसी में। यस, देयर इज अ वेरी फेमस हिंदी दिस थिंग, जिस थाली में खाना खाता है उसी में छेद करता है। सो दीज आर ड्रग्स which are activated by a particular enzyme, and after activation they kill that enzyme only जिसने इसको एक्टिवेट करा था। जैसे एलोप्यूरिनॉल was activated by xanthine oxidase to oxypurinol। अब इस ऑक्सीप्यूरिनॉल ने इसी xanthine oxidase को इनहिबिट कर दिया एक्टिवेट होकर, राइट? नो, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर इज क्लैविलिनिक एसिड। आई amoxicillin इज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। मैंने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर बोला। Yes or no? Yes or no? Okay. Allosteric, when the drug binds to the other site than the allosteric site without having a capability to even compete. That is an allosteric inhibition. So here you can see an enzyme, a competitive inhibitor, and a substrate competing for the same site. दोनों को सेम ही साइट चाहिए, right? Can you see over here? But this competitive inhibition is of reversible types. कैसे? कैसे रिवर्सिबल है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? अगर मैंने ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो वो इनहिबिटर को डिस्प्लेस कर देता है। कहते ना, इफ वी गेट समवन बेटर वी रिप्लेस देम इन आवर लाइव्स। सो यहाँ पे समवन बेटर तो नहीं है, बट यस, मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ा दिया। एज सून एज आई इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, the enzyme the inhibitor on the enzyme displaced is getting displaced, and
the substrate again binds to the enzyme. So that is why I call it a reversible kind of an inhibition, but this can't occur in non-competitive. Okay. Are we all clear till here? Do we have any queries, any doubts, anything that you wish to ask me? आगे बढ़े? Chalo, that's great. And this is a table where I have written few examples like HMG-CoA are competitive inhibitors, alcohol dehydrogenase, THFR are non-competitive inhibitors. Then cyanide on the cytochrome oxidase is an active inhibition. And suicidal inhibition may you have allopurinol, 5-fluorouracil, beta-lactamase inhibitors, how the Km value and Vmax value is affected. You can jot down these examples. वैसे सत्यनारायण में इससे 10 गुना ज्यादा एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट अभी आप पूरा टेबल, इनफैक्ट एक पूरा पेज है इनिबिशन को. हाउ मेनी ऑफ अस हैव रेड सत्यनारायण? कितने लोगों ने पढ़ा है सत्यनारायण? Good. So let's study the first metabolism cycle, which is glycolysis. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, 1,6 डाइफॉस्फेट से we have DHAP and PAGL, which is dihydroxy acetone phosphate and phosphoglyceraldehyde interconversion. Phosphoglyceraldehyde से 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, थ्रू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड, and finally if it is an aerobic glycolysis I form pyruvate, or I will form a lactate thereafter from pyruvate dehydrogenase if there is anaerobic glycolysis. कितना टाइम लगा इस साइकिल को याद रखने में? And this cycle occurs in the cytoplasm. This cycle has 3 irreversible steps, which is step number 1, 3, and 10. 1, 3, and 10 are irreversible steps. Fluoride can inhibit enolase. So hexo, अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते? दिस वॉज अ AIMCRE 1 क्वेश्चन. AIMCRE 1 में ये क्वेश्चन आया था. हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज का डिफरेंस. बोथ कैटलाइज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. बोथ परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फॉस्फोराइलेशन. तो डिफरेंस क्या है? हाउ इज हेक्सोकाइनेज डिफरेंट फ्रॉम ग्लूकोकाइनेज? ग्लूकोकाइनेज सिर्फ लीवर में होता है, हेक्सोकाइनेज हर जगह है. ग्लूकोकाइनेज इज ओनली इन द लीवर. अगर आपका एक सच्चा दोस्त है तो वो आपके साथ अच्छा हो बुरा हो खड़ा रहेगा. ही विल बी देयर विथ यू. सो ही इज अ हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट एवरीवेयर. बट अगर कोई मतलबी दोस्त है, वो सिर्फ व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी ही विल बी देयर विथ यू, व्हिच इज ग्लूकोकाइनेज. ओके. देन फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, aldolase, triose phosphate isomerase, which interconverts DHAP and PAGL.
hydrogenase, phosphoglycerate kinase, phosphoglycerate mutase, enolase, pyruvate kinase और finally pyruvate dehydrogenase. ये भी एक step होता है जब lactate बनता है. That's called pyruvate dehydrogenase from which you form lactate. Okay. So इस cycle को जल्दी से याद करते चलेंगे everybody. Yes, PYQs are repeated. Okay. Yes, होगा. The next cycle is the Krebs cycle or the citric acid cycle. ये टेबल मैंने किस बुक से लिया है? ये किस बुक का स्क्रीनशॉट है? Anybody? This is a screenshot from which book? Shrisela, Hetvi, Vinayak. Yes. Can someone help me? Kamran, Imran, Ratnikanta. Yes, Kalyani. सत्यनारायण का पीडीएफ ये है. वेरी गुड. क्योंकि आप तो बुक पढ़ेंगे नहीं तो मुझे ही बुक को आपके लिए लेकर आना पड़ेगा. So citric acid cycle starts when pyruvate from glycolysis is formed. This pyruvate on decarboxylation gives acetyl coenzyme A, which condenses with oxaloacetate to form citrate, cis-aconitate, isocitrate, 5-carbon compound alpha-ketoglutarate, succinyl coenzyme A, which is a 4-carbon compound. Citrate is a 6-carbon compound. Succinate, fumarate, malate. So 6-carbon, 5-carbon, 4-carbon. ये तो सबसे पहली बात क्लियर होनी चाहिए. क्रेब्स साइकिल का ही दूसरा नाम सिट्रिक एसिड साइकिल है. ये क्लियर. एक होता है क्रेब्स हेंजलेट साइकिल. क्रेब्स हेंजलेट साइकिल इज अ यूरिया साइकिल. ठीक है. Only Krebs cycle is a citric acid cycle. Krebs Henslett is when I gave my Manipal examination at that time, this was a question. The Krebs Henslett cycle is also called as an option में glycolysis, Krebs, citric acid और urea चारों थे. So I remember this very well. Krebs Henslett cycle is a urea cycle. So what are the vitamins and why vitamins? We just discussed about the cofactors. So thiamine is a cofactor और cofactor में भी कौन सा type? Prosthetic या coenzyme? It's a coenzyme type of a cofactor. FAD is a cofactor. Niacin is a cofactor. Vitamin B5 is so मतलब B1, B2, B3, B5 सभी के सभी विटामिन जरूरी है इस साइकिल के लिए. And thiamine is a cofactor for alpha ketoglutarate. Cyboflavin is for succinate. Niacin is for isocitrate. Pantothenic is for acetyl coenzyme A. It basically transfers a acyl coenzyme A group. So ये जो coenzyme A group है ना, can you see this? या succinyl में भी can you see this? coenzyme में ये दिख रहा है. लोग रट लेते, I really hate this. They just mug up coenzyme ही attach कर. अरे structure से दिखाओ. स्टूडेंट्स को ज्यादा याद रहता है. coenzyme में अटैच हुआ. क्यों अटैच हुआ? B5 की वजह से. coenzyme में अटैच हुआ. क्यों अटैच हुआ? B5 की वजह से. थाइमीन दिख रहा है ना, अल्फा कीटोग्लूटारेट के यहाँ पे थाइमीन पायरोफॉस्फेट की वजह से ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, टीपीपी, जिसमें NAD got converted to NADH.
I'm so sorry. Yes, sulbactam, tazobactam. Inhibitors, so aconitase का inhibitor है fluoroacetate, which is a non-competitive. Alpha ketoglutarate dehydrogenase का inhibitor है arsenate, which is non-competitive. Malonate is a succinate dehydrogenase inhibitor, just like हमने enolase inhibitor पढ़ा था ना, fluoride competitive inhibitor था, वैसे ही यहाँ पे these three, write them down. Kindly write them down. अब टोटल एटीपी जो बनता है, ग्लाइकोलिसिस से कितना एटीपी बनता है कोई मुझे बता सकता है, और क्रेब्स से कितना बनता है कोई बता सकता है? यस, और टोटल एटीपी कितना होता है फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 1 NADH2 gives how many ATP molecules? 3. 1 FADH2 gives how many ATP molecules? 2. ये सबको पता है. इसके साथ साथ दो इफेक्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्ब ट्री इफेक्ट एंड पैस्चर इफेक्ट. क्या आप लोगों ने कभी सत्यनारायण पढ़ी है? तो क्या आप लोगों ने ये दो वर्ड्स याद रखे हैं, कार्ब ट्री इफेक्ट एंड पैस्चर इफेक्ट? कार्ब ट्री इफेक्ट एंड पैस्चर इफेक्ट, ये आपकी ग्लाइकोलिसिस के सबसे महत्वपूर्ण इफेक्ट है. पैस्चर इफेक्ट कहता है कि ऑक्सीजन इनहिबिट्स एटीपी प्रोडक्शन, एंड कार्ब ट्री कहता है हाई ग्लूकोज इनहिबिट्स एटीपी प्रोडक्शन. मतलब एनर्जी प्रोडक्शन या रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलिसिस कम होगा अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा, या अगर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होगा तो भी कम होगा. ये पैस्चर कहता हूं, कार्ब ट्री इफेक्ट एंड पैस्चर इफेक्ट. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, हम इन्हीं को स्किप करते हैं जब आप बात करते हो एम्स के बारे में, जीपैट के बारे में. सो एम्स दिल्ली में स्पेशली मोस्टली द बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. तो वो इस तरीके की माइनर या सिली चीजों पे फोकस करते हैं दैट वी लीव डायरेक्ट. कि अगर आप इफ यू हैव रेड कार्ब ट्री इफेक्ट यू कैन आंसर. आप तुक्का लगा ही नहीं सकते थे, मेरे बताने से पहले आपको पता ही नहीं होगा मे बी ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या आएगा. करेक्ट, और मे भी पता भी हो सकता है, इट्स अप टू यू कि आपने पढ़ा है या नहीं. राइट, यस और नो? यस और नो? अच्छा, ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है? जब भी ग्लाइकोलिसिस होती है तो एसएलपी होता है या ओएलपी होता है? There is always a substrate level phosphorylation in glycolysis. प्लीज इसको लिख लीजिए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस में. लिख लिया आप लोगों ने? यस और नो?
पहले पता है जो सत्यनारायण बुक वगैरह में पढ़ते थे कि 1 ग्लूकोज गिव्स 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, सही है? तो यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, ये 30 गलत है या 36 गलत है? विच इज रॉन्ग? 30 इज रॉन्ग और 36 इज रॉन्ग। काफी बुक्स में दिया होता है 36 मॉलिक्यूल्स, कौन सा सही है? जब आप मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो ना, सो एज पर द ओल्ड बायोकेमिस्ट्री 24 हिस्से, 8 हिस्से और 4 आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, सो 1 ग्लूकोज यील्ड्स अप्रोक्सीमेटली 36 to 38 मॉलिक्यूल्स। बट नई बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स यील्ड्स 30 to 32, क्योंकि यहां से ये 8 का 4 हो जाता है और ये 24 का 22 हो जाता है। सो कंपेरेटिवली यहाँ पे 4 कम हुए, 6 कम हुए, तो 6 कम हो गए, 36 - 6। सो दिस इज एज पर ओल्ड बायोकेमिस्ट्री, दिस इज एज पर न्यू बायोकेमिस्ट्री। अब आपके एग्जामिनर, ये टोटली इट्स ऑन योर नसीब एंड लक कि योर एग्जामिनर विल कंसिडर विच वन। आई हैव टोल्ड यू बोथ, आप दोनों याद रखिएगा कि 1 ग्लूकोज यील्ड्स 36 एटीपी molecules as per the old biochemistry and 32 molecules as per the new biochemistry. Yes or no, are we all clear? Can I move forward? कोई रिप्लाई नहीं आ रहे, क्या सब लोग सो रहे हैं या कोई लिख नहीं रहा है या बोर हो रहा है या लेट लेट के पढ़ रहे हैं या मन नहीं है पढ़ने का, ऐसा है? यस, फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूं फिर, अगर आपको मन नहीं कर रहा तो। यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल आपकी कहाँ होती है? क्या पहले मुझे कोई बता सकता है क्या यूरिया साइकिल किडनी में होती है? किडनी में होती है ना? यूरिया तो किडनी में ही होता है। लीवर में। एक्सेलेंट आशीष पटेल, लीवर में होती है यूरिया साइकिल, लीवर में होती है। लीवर में कहा? माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आपका क्रेब्स साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल इज अ एनाबॉलिक साइकिल, कैटाबॉलिक, एम्फीबॉलिक साइकिल। कैटाबॉलिक भी होती है, एनाबॉलिक भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रेब्स, करेक्ट? Krebs is an amphibolic cycle which occurs in mitochondria matrix and it has anabolic as well as catabolic, that is why amphibolic. So similarly, urea cycle occurs in the mitochondria and cytosol in the liver. Beta oxidation of fatty acid कहाँ होता है और fatty acid synthesis कहाँ होता है? Fatty acid synthesis mitochondria, फैटी एसिड होता है साइटोसोल। fatty acid occurs in mitochondria and cytosol. Beta oxidation occurs in mitochondria and peroxisomes. तो जब तक आपको ये ऐसी चीजें वेरी बेसिक, मतलब जो आपको सेमेस्टर में पढ़ लेनी, while you are doing your D Pharm you would have studied this, बट आइदर आपने पढ़ाया, आपको पढ़ाया नहीं गया, या तो आपने खुद से नहीं पढ़ा, या तो आपने आपका बैचलर्स डिप्लोमा होने के बाद उस बुक को हाथ नहीं लगाया। सिंपल सी बात है। वी ऑल हम हमेशा रिग्रेट करते हैं या कोसते रहते हैं, वी ऑलवेज ब्लेम आर कॉलेजेस के हमें अच्छा एक्सपोजर नहीं मिला, हमें पढ़ाया नहीं गया, टीचर्स ऐसे थे। खुद करो ना, नहीं पढ़, मुझे भी नहीं पढ़ाया गया, मेरी भी बहुत ही, आई ऑल्सो डोंट कम फ्रॉम अ गुड कॉलेज इन माई बैचलर्स, बट मैंने खुद से पढ़ा, राइट? मेरा मास्टर्स ऊपर वाले का शुक्र है कि अच्छी जगह से हुआ है, तो वहां से भी मुझे काफी अच्छा एक्सपोजर मिला। बट यू कैन नॉट ब्लेम एवरीवन, राइट? कि मैंने ये नहीं पढ़ा, हमारी कॉलेज ही ऐसी थी। खुद से पढ़ते, चलो लाइब्रेरी भी नहीं थी कॉलेज में, कोई बात नहीं, ऑनलाइन बुक्स मिलते थे, ऑनलाइन पढ़ लेते बुक्स से। वी ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस, दैट्स नॉट फेयर। मेरे साथ एक स्टूडेंट था इन 2024, so I had a student called Sanjeevan Gupta. He was GPAT All India Rank 2 and he had faced lot of his hardships. उसके फादर की भी अनफॉर्चुनेटली डेथ हुई थी
जस्ट जी पैट के सम मंथ्स पहले उसकी जो दुकान थी वो बह गई थी. दे ओनली हैड वन शॉप जो उनका रोजी ये से अर्निंग. जस्ट 2 months फॉर जी पैट. ही वॉज वेरी डिसहार्टेंड. बहुत सोच में था कि होगा या नहीं. ओनली सम मोटिवेशन सम बूस्ट मैंने दिया. मेरा रोल कुछ नहीं था, जस्ट लिटिल मोटिवेशन. उस इंसान ने पूरा पढ़ाई करी इतनी हार्डशिप्स के बाद भी इन अ वेरी स्मॉल रूम जहां पे इतना शोर इतना सब कुछ एंड ऑल इंडिया रैंक. सो हमेशा ऐसी इंस्पिरेशन लो लोगों से कि आप हमेशा बोलते हो ना कि हमारे से नहीं हुआ या हमारा पहले बार में नहीं निकला और शुड वी गिव इट अ ट्राई अनदर चांस देना चाहिए या हम पहली बार कोई एग्जाम दे रहे हैं क्या हमसे हो पाएगा. ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट से ही आपका नहीं होता है. अगर मन में सोच लिया कि करना है तो करना है. सिंपल सी बात. Urea cycle starts from ammonia fusing with carbon dioxide in the presence of CPS to form carbamyl phosphate, which on ornithine transcarbamylation gives citrulline, arginosuccinate, arginine, and finally urea. And ornithine is regenerated. So just remember the intermediates: ammonia plus carbon dioxide, citrulline, arginosuccinate, arginine, urea and ornithine. फक्त आने याद राखो. फक्त हे लक्षात ठेवा. येस. ओ फैक्टर्स. ये टेबल में से मैं कुछ मार्क कर रहा हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सैम फॉर डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज. एनएडी. आपको पता है ये पीपीटी 29 पेजेस की है. हाउ मच टाइम इज. हाँ जी विकास. हाउ मच टाइम लगा होगा इस एक पीपीटी को बनाने में 29 पेजेस की. कैन एनीबडी गेस. यस. निधि, रत्नीकांत, आशीष, अमित, विकास. 4 days. 3 hours. इसको 3 दिन लगे. क्यों ऐसे? 3 दिन क्यों? ये तो क्लॉड में डालता. क्लॉड मुझे बना के दे दो पीपीटी और चैट जीपीटी मेकअप पीपीटी बन जाती. 3 दिन क्यों लगे जिस पीपीटी को 3 मिनट लगने चाहिए थे या 30 मिनट. क्योंकि आई मेक श्योर कि लेनिंजर सत्यनारायण से जितना रॉ कंटेंट है सबका सब इजी फॉर्म में आपको मिले. तो अब आपका बस ये काम है कि आप उस पीपीटी को अच्छे से पढ़ें. आपको मैं ये नहीं कह रहा कि गो टू द रेफरेंस बुक्स. आई वांट यू टू गो बट चलो ठीक है. इफ यू डोंट गेट टाइम इट्स ओके. बट एटलीस्ट ये पीपीटीज जो मैंने दी है वो पढ़ो अच्छे से यार. अगर वो भी तुमसे नहीं पढ़ा जाता तो फिर भूल जाओ कि तुम एग्जाम क्रैक कर पाओगे. फिर तुम मत पढ़ो. फिर तुम छोड़ दो तैयारी करना. रियली दिस इज व्हाट यू शुड मिनिमम एक्सपेक्ट. राइट. मैंगनीज. सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस. molybdenum, nitrogenase, nitrate reductase, copper, cytochrome oxidase. If you are preparing for GATE ना, GATE में सबसे कॉमन सवाल होते हैं. एम्स एंड गेट में बहुत सवाल आते हैं इस टेबल से. जिंक एंड मैग्नीशियम डीएनए पॉलीमरेज, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस. THF कार्बन ट्रांसफर. Decarboxylation, विटामिन B6. कार्बोक्सिलेशन, विटामिन B7. देखा कितना क्लोज है. डीकार्बोक्सिलेशन B6, कार्बोक्सिलेशन B7. अब यही हमें नहीं. विटामिन H का दूसरा नाम बायोटीन है. बेसिक चीजें हैं ना जो यू मस्ट नो. दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. कोएंजाइम ए. पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस.
Succinate dehydrogenase, FMN. Isocitrate dehydrogenase, alpha ketoglutarate dehydrogenase, B1, B2, B3. Oh, sorry. B1, B2, B3. Lipoic, not important. Heme is a very important enzyme in catalase. अच्छा, catalase और peroxidase ये same enzyme है क्या या अलग है? Are they same or different? Catalase and peroxidase. Catalase H2O2 को तोड़ता है into water and oxygen और peroxidase H2O2 बनाता है from water and oxygen. Opposite है ये. H2O2 को बनाना peroxidase, H2O2 को तोड़ना catalase. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द कोचिंग या काफी जगहों पे डायरेक्ट मैं देखता हूं बस ये टेबल कहते हैं लिख लो, पढ़ लो, रट लो, समझ लो. अरे कैटलिस क्या है ये तो बताओ. क्या पता कभी ये सवाल पूछ लिया व्हाट इज द रोल ऑफ कैटलिस और आपको यही ना पता हो कैटलिस मींस तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेरोक्साइड. पढ़ रहे हो तो फिर आप जैसे एसओडी 3 टाइप के होते हैं, एमएन एसओडी, जेडएन एसओडी, सीयू एसओडी. बट जेडएन और सीयू को छोड़ के मैंगनीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर फिजियोलॉजिकल. बट ये जरूरी भी नहीं है कि अब जिंक क्या करता है, इतना भी डेप्थ में नहीं जाना. बट उतना तो डेप्थ में जाओ कि जितना जरूरी है, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट. तो मेरे क्लास में जो टॉपिक्स में मैं डेप्थ में जा रहा हूँ वो आपको जरूर मेरे साथ डेप्थ में जाना है और जिसमें मैं नहीं जा रहा उसमें नहीं जाना है, राइट? दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट. तो प्रायोरिटीज अपनी रखना जरूरी है कि क्या आप 100% सिलेबस कर पाओगे? बी प्रैक्टिकल. नो, नॉट पॉसिबल. बट हाँ, आप 70 करोगे बट उस 70 से कुछ भी आ जाए आप वैसा तगड़ा करोगे, राइट? सो मेरा लक्ष्य हमेशा ये होता है कि मैं 70% स्टूडेंट्स को तैयार करूं जिससे कोई भी सवाल आए वो निकाल ले. दैट इज हाउ माई कोचिंग वर्क्स. Carbohydrates, they are CH2N stoichiometric ratio containing biomolecules which are sugar compounds having glycosidic linkage, while proteins have amide linkage or peptide linkage, while nucleic acids have phosphodiesterase linkage, while lipids have ester linkage. हर एक बायोमोलिक्यूल्स की एक अलग अलग लिंकेज होती है. न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्ट्रेस. फॉस्फोडाइस्ट्रेस से मुझे याद आया, कोई मुझे फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर के एग्जांपल दे सकता है? एनीबॉडी यू कैन हेल्प मी आउट विद द फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर? यस, विटामिन B7 is H. Amit. Yes, sir. Yes, Hedvi, B7 is Phosphodiesterase biotin. 5, sildenafil, phosphodiesterase 4, domperidone, phosphodiesterase 3, inamenone or milrinone. Phosphodiesterase 3 inhibitor, amrinone, milrinone, 5 inhibitor, tadalafil, sildenafil, vardenafil. Non-selective phosphodiesterase inhibitor, theophylline. Phosphodiesterase 4 inhibitor, drotaverine, rofilumast. करेक्ट? मैंने आपको 6 ड्रग बताए. अब अगर आप में से कोई स्मार्ट बंदा होता तो लिख देता इस वक्त फॉस्फोडाइस्ट्रेस, भले ही स्क्रीन पर कहीं नहीं है, स्क्रीन पर तो कहीं मेंशन नहीं है. बट यही है एक टॉपर का और एक आप बोलते हो ना कि एक रैंकर टॉपर ऐसा क्या करता है, यही करता है. जो चीज क्लास में बिसाइड्स द पीपीटी बताई जाती है वो उसे पढ़ता है, लिखता है. अब आप में से अगर कोई स्मार्ट होता तो वो लिख लेता, या एटलीस्ट उसने नाम तो मैंने बहुत फास्ट बोल दिए, एटलीस्ट पीडीई इनहिबिटर्स लिख देता और घर जाके वो पढ़ता. This is how you distinguish a ranker with an average student. तो अगर रैंकर बनना है तो एफर्ट्स भी ज्यादा डालने पड़ेंगे, है ना? So the classification is polysaccharides having more than 10 units, monosaccharides, disaccharides, trisaccharides और oligosaccharides. जिसमें raffinose is a trisaccharide, stachys is a tetrasaccharide. मोनोसैकेराइड में ट्रायोस, अल्डेहाइड कंटेनिंग ग्लिसरल्डेहाइड
टेट्रोज aldehyde containing erythrose, aldose pentose containing xylose, hexose में glucose which is aldehyde containing, fructose which is ketone containing, mannose C4 epimer of glucose, C2 epimer of glucose, while galactose is a C4 epimer of mannose. Galactose is a C4 epimer. Glucose and mannose are C2 epimers. Epimers क्या होते हैं? Epimers क्या होते हैं? सिंगल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज होना इज एपीमर्स. तो एनोमर्स क्या होते हैं? फर्स्ट कार्बन पे ऑलवेज एनोमरिक कार्बन फर्स्ट कार्बन होता है. तो जब भी आप फिशर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब भी आप फिशर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो जब ये एनोमेरिक हाइड्रोजन ऊपर होगा तो ये बीटा है, और जब ये हाइड्रोक्सिल नीचे होगा तब ये अल्फा है. सिंपल. So anomeric carbon is always the C1 carbon. Epimeric carbon can be C2, C4. So glucose, and this is a GPAT and AIMS question. ये 3 बार AIMS में आ चुका है, epimers and anomers. So अगर आप लोगों ने AIMS या GPAT or any exam you're preparing for, you must know the concept of epimers and anomers. Are we all clear till here? Anybody wishes to ask anything? अच्छा, कीटो एक्सोस के लिए कौन सी टेस्ट होती है? सेलेविनॉफ सुना है? सेलेविनॉफ. पेंटोसिस के लिए कौन सी टेस्ट होती है? बायल्स टेस्ट सुना है? बायल्स टेस्ट. रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के लिए कौन सी टेस्ट होती है? बेनेडिक्ट और फेलिंग्स सुना है? स्टार्च के लिए कौन सी टेस्ट होती है? स्टार्च के लिए आयोडीन सुना है? तो जब तक आपको इन टेस्ट्स के बारे में नहीं पता है, बारफोर्ड्स टेस्ट किसके लिए होती है? मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स के लिए. इट इज पॉजिटिव फॉर मोनोसैकेराइड. तो जब तक आपने बेनेडिक्ट, फेलिंग, बारफोर्ड, बायल, आयोडीन, सेलेविनॉफ, अब यही नहीं पता कि सेलेविनॉफ में ब्रिक रेड कलर आता है, तो कैसे चलेगा? फेलिंग सोल्यूशन ए कॉपर सल्फेट एंड बी सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, यही नहीं पता तो कैसे चलेगा? राइट. हमें अपने बेसिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे. वी हैव टू गो एंड पिक अप आवर बैचलर्स बुक. राइट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कितनों को याद, हाउ मेनी ऑफ अस आर एबल टू रिकॉल, रिकलेक्ट, कितने लोगों ने ये पढ़ा हुआ है? धुंधला, ब्लर ब्लर सा याद आ रहा है. राइट. Yes, it distinguishes reducing and non-reducing. चलो ठीक है. अब जब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की, तो पॉलीसैकेराइड्स में आपके पास होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड होते हैं. होमोपॉलीसैकेराइड मतलब वो पॉलीसैकेराइड्स जो कि आपके सेम रिपीटिंग यूनिट से बनेंगे. जैसे स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, सेम यूनिट है ना. जैसे व्हेन आई टॉक अबाउट मैल्टोज, तो मैल्टोज अल्फा 1,4-D ग्लूकोज से बना है.
लैक्टोज बीटा 1,4-D ग्लूकोज से बना है। सुक्रोज अल्फा बीटा 1,2 से बना है। अल्फा का ग्लूकोज और बीटा का फ्रुक्टोज। सो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज gives you sucrose. Glucose plus galactose gives you lactose. And glucose plus glucose gives you maltose. Alpha 1,4-D glucose plus alpha 1,4-D glucose gives you maltose, which is a malt sugar. Alpha 1,4-D glucose plus beta 1,2 fructose gives you sucrose, which is a non-reducing sugar. और सुक्रोज का और कौन सा नाम है? What is another name for sucrose? Which is a sweetest sugar in the body? Which is a table sugar? Which is a cane sugar? Sir, inverted sugar, cane sugar. Excellent. Invert sugar. Cane sugar. इन्वर्ट क्यों? ऐसे ही टाइम पास। इन्वर्जन होता है इसमें। आपने केमिस्ट्री में, आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक फैकल्टी आएंगे, वो पढ़ाएंगे आपको इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, ये सारी चीजें। तो वो इन्वर्जन, उससे इन्वर्ट शुगर आता है। Then you have beta 1,4 glucose and beta 1,4 galactose making lactose. ठीक है, तो अगर आपने ये कंपोनेंट्स पढ़ लिए ना, इससे भी सवाल आते हैं। देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस डोमेन आल्सो। लैक्टोज इज अ मिल्क शुगर, इसलिए काफी बार लैक्टोज टॉलरेंट होते हैं ना कुछ लोग। लैक ओपेरॉन है आपके बॉडी में, लैक्टोज ओपेरॉन, जो कि इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। क्या ये एक, अभी मैं एक स्लाइड के पीछे मैंने 15 मिनट क्यों लगाए? मैं चाहता तो ये एक स्लाइड को 1 मिनट में बस आपको क्लासिफिकेशन देके उड़ा देता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हमें ज्यादा वक्त बिताना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर हम 10:45 से लेके अभी 11:03 हुए, 17 मिनट्स बस एक स्लाइड पे थे, बिकॉज इस स्लाइड से सवाल भी आएंगे, तो हमें इससे वक्त बिताना भी पड़ेगा। इन्यूलिन क्या है? जीएफआर के लिए कुछ है क्या? इन्यूलिन का जीएफआर से कुछ लेना देना है? यस, बायोफार्मास्यूटिक्स। हिपैरिन, जीएफआर के मेजरमेंट में यूज किया जाता है। यस, हिपैरिन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, याद आया? एंटीकोएगुलेंट, प्रोटामाइन इज एन एंटीडोट ऑफ हिपैरिन। एंटीथ्रोम्बिन 3 को एक्टिवेट करता है हिपैरिन। केन शुगर, माल्ट शुगर, मीट शुगर, बीट, raffinose is a trisaccharide of glucose, fructose and galactose. अल्डोसिस मतलब इसमें फ्री अल्डेहाइड एक ग्रुप होगा। कीटोसिस मतलब इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर पढ़ा है सबने, CH2CC। ये मैंने ग्लूकोज का बना रहा हूं, स्ट्रक्चर पढ़ा है सबने, HOH ऐसे, राइट? इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि नहीं? अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पता चलता है? हाउ मेनी ग्लूकोज हैज हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स? 2 raised to n 4. Yes, are we all clear till here? किसी को कोई क्वेरी, कोई डाउट, एनीथिंग?
इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? What is the name of this structure and this structure? Yes, Ashish, Hetvi, Srisela, विकास, स्वाति, विनायक, रोशन, रतिकांता, निधि, कीरी, कल्याणी, हेतु, दीपक, भुवनेश, अमित. बस जगाने के लिए पूछ रहा था ऐसा कुछ. इट इज इररेलेवेंट. मैं ऐसे ही पूछ रहा था आपको देखने के लिए कि आप लोग जग रहे हो या नहीं. यस, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन. क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है या ये फंक्शनल आइसोमर है? स्ट्रक्चरल आइसोमर है या फंक्शनल आइसोमर है? स्ट्रक्चर, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो सेम है ना. क्लोरीन क्लोरीन ही है. फंक्शनल ग्रुप थोड़ी शिवानी, फंक्शनल ग्रुप कहाँ बदला है? जब फंक्शनल ग्रुप बदलता है तो वो फंक्शनल आइसोमर है. ईस्टर का ईथर कर दिया, ईस्थर का अल्कोहल कर दिया तो वो फंक्शनल आइसोमर है. यहाँ तो स्ट्रक्चर ही बदला है ना, बस ब्रांच्ड से लीनियर करा दिया मैंने इसको. ये लीनियर क्लोरोप्रोपेन है, ये ब्रांच 2 क्लोरोप्रोपेन है. यस और नो? चलिए, Molish, Benedict, Barford, Selivanov, Felling, Tollin, Pentos, Bilestes, ओसाजोन. ओसाजोन जो है ना, हर एक क्रिस्टल का अलग शेप होता है. जैसे लैक्टोस में वो पाउडर पफ और मशरूम शेप होता है. पाउडर पफ और मशरूम शेप होता है. निडल शेप ग्लूकोज में होता है. सनफ्लावर शेप मैल्टोस में होता है. दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट. हेट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब अलग अलग यूनिट से बनते हैं, जैसे अगार एंड ऑल. राइट? आते हैं क्वेश्चंस. कुछ नहीं है, बस आपको एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन. जैसे मॉलिश का नाम याद आती है, एक टेस्ट ट्यूब है. जब यहाँ पे एक पर्पल कलर की इंटरफेस पे रिंग आएगी तो वो मॉलिश टेस्ट है. फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को मिला है रेड कलर. अगेन रेड कलर इन बारफोर्ड्स टेस्ट, पॉजिटिव फॉर मोनोसैकेराइड्स. सेलेविनॉव्स टेस्ट, पॉजिटिव फॉर कीटोहेक्सोस, फ्रुक्टोज के लिए. रेड कलर अगेन रेसोर्सिनॉल की वजह से रेड कलर आता है. राइट? पेंटोस बायल्स में ग्रीन कलर होता है. यस, ग्रीन कलर होता है. ओसाजोन में फिनाइल हाइड्राजीन यूज करते हैं. बस ये जो मैंने मार्क किया इतना भी पढ़ लिया तो दैट्स इट. इतना डेप्थ में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट इतना तो याद रखना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर, यू डोंट हैव अ चॉइस. राइट? लिपिड्स. Lipids are simple lipids, compound lipids, derived lipids. Derived में you have alcohol, fatty acids, terpenoids. कितने यूनिट होते हैं आइसोप्रीन में? How many carbon are there in isoprene? 5 carbon. Hemiterpene, monoterpene, sesquiterpene, diterpene, sesterpene, ट्राइटर्पीन्स, टेट्राटर्पीन्स. सुना है आप लोगों ने? हैव यू हर्ड इन फार्माकोग्नोसी? हेमी मतलब 5 कार्बन, मोनो मतलब 10 कार्बन, सेस्क्यू मतलब 15 कार्बन, डाई मतलब 20 कार्बन, सेस्टर मतलब 30 कार्बन, 25 कार्बन, ट्राई मतलब 30 कार्बन, टेट्रा मतलब 40 कार्बन. Because hemi has 1 isoprene units, mono has 2 isoprene units, sesquio has 3 isoprene units, di has 4 isoprene units, sester has 5 isoprene units. So pachu pachu 5 5 25. Tri has 6 isoprene units. Tetra has 8 isoprene units. ये है हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल.
phobic tail, philic head. Done. Then compound lipids में we have phosphor plus lipids, carbohydrate plus lipids, phospholipid, glycolipids, and we have lipoproteins also. Simple lipids में fats that are solid at room temperature, oils that are liquid at room temperature. Fats that are solid at room temperature, oils which are liquid at room temperature. आज शाम को फार्माकोलॉजी की क्लास है 6 बजे. मिस मत करना फार्माकोलॉजी. मिस कर भी दी तो रिकॉर्डिंग देखना मत भूलना. Proteins, we have primary, secondary, tertiary, quaternary. Quaternary structure is made up of secondary only. Secondary को यहाँ वहाँ मोड़ के. So hemoglobin is a quaternary protein. 2 alpha and 2 beta. So it has 4 chains. Primary simple sequence of amino acids. Secondary alpha helices, beta pleats. इसमें लूप्स और टर्न्स होते हैं. टर्शरी 3-dimensional फोल्डिंग 3D. इसमें आपके पास वैंडर वॉल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होते हैं. प्रोटीन के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर प्रोटीन एस्टिमेट करना है, अगर प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखना है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है, फ्रोजन प्रोटीन के बारे में जानना है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन देखना है, सीक्वेंसिंग ऑफ प्रोटीन करना है, हर एक के लिए वी हैव अ डिफरेंट बायोलॉजिकल टेक्निक. Estimate the protein using Follin's method or Bradford's method. 2D structure of protein can be determined by circular dichromism or SPR, surface plasmon resonance. Structure of protein can be identified using using the Malditov matrix assisted Lissauge desorption ionization time of flight. Cryochem is used for the frozen. Expression of protein is done by Western blotting. Sequencing of protein is done by different sequencing tools like Edman's method. DNA sequencing, protein sequencing है ना, सुना होगा आप लोगों ने. DNA sequencing, protein sequencing. Edman's method, Danseil's method, Sanger's method. So Sanger आपका डाई होगा, इसमें आप 1-fluoro 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन यूज करते हो. 1-fluoro 2,4 dinitrobenzene. It's also called as dideoxynucleotide method. Dansyl में आप यूज करते हो डाइमिथाइल अमाइनो नैफ्थाइल सल्फोनिल क्लोराइड. Dansyl का फुल फॉर्म ही वो है, डाइमिथाइल अमाइनो नैफ्थाइल सल्फोनिल क्लोराइड.
एडमैन में फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। सो प्रोटीन का अलग अलग, उसके लिए भी आप डिफरेंट टूल्स है ना, सीक्वेंसिंग करना हो, एक्सप्रेशन करना हो, फ्रोजन फॉर्म में देखना हो, स्ट्रक्चर देखना हो, 2D आइडेंटिफिकेशन हो, एस्टिमेट करना हो, ईच हैज अ डिफरेंट टेक्निक, ईच ऑफ इट हैज अ डिफरेंट टेक्निक। समझा सबको? हाँ, निनहाइड्रिन टेस्ट अगर आपको जैसे, वैसे तो बहुत टेस्ट है, निनहाइड्रिन है, हॉपकिन कोल है, सागाकुची है, जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को भी डिटेक्ट करते हैं प्रोटीन कि इफ आई वांट टू नो टाइरोसिन तो मैं मिलन्स टेस्ट करूंगा, इफ आई वांट टू नो ट्रिप्टोफैन सो आई विल गो फॉर हॉपकिन कोल, इफ आई वांट टू नो अर्जिनिन आई विल गो फॉर सागाकुची, इफ आई वांट टू नो इमिडाजोल आई विल गो फॉर पॉलीस टेस्ट, इफ आई वांट टू नो एरोमेटिक अमीनो एसिड आई विल गो फॉर ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, है ना, हर एक अमीनो एसिड की एक अलग टेस्ट होती है। बिल्कुल। कुछ लोग होते हैं जो इस 30 पेज की पीपीटी को 30 मिनट में खत्म करते हैं, 1 घंटे में खत्म करते हैं और 1.5 घंटे में खत्म करते हैं। मैं उनमें से हूं जो इसको 1.5 घंटे में खत्म करता है, नॉट बिकॉज मुझे टाइम चाहिए आप लोगों को, बिकॉज आई नो कि ये टाइम वर्थ है। ये थी 30 मिनट की पीपीटी, बट मुझे ऐसा चाहिए कि मैं हर स्लाइड को ऐसे समझाऊं कि आप उसको दोबारा जाके देखने की भी जरूरत ना पड़े, यू आर रिमेंबर, और उससे जो भी सवाल पॉसिबल, अब जैसे ये स्लाइड इससे डायरेक्ट एग्जाम्पल है, तो इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं कि भैया ग्लिसरॉल इज नथिंग बट ट्राइएसाइल फैट्स, राइट? फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल व्हाइल वैक्सेस आर ऑफ अल्कोहल्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैक्सेस आर लॉन्ग चेन अल्कोहल्स। कंपाउंड में आपको पता है फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लाइपोप्रोटीन, मतलब क्या? फॉस्फेट कंटेनिंग लेसिथीन, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स टुगेदर, लाइपो प्रोटीन एंड लिपिड्स टुगेदर, राइट? आपका लाइपोप्रोटीन्स यूजुअली लिपोप्रोटीन्स कोलेस्टेरॉल वगैरह में मेजर करते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स ये कुछ नहीं होते, ये मेरे ग्लिसराइड्स होते हैं अदर देन बेसिस, जैसे कॉलिन, सरीन। So choline is also called as vitamin B4. लिख लिया आप लोगों ने ये एग्जाम्पल? आई ऑल राइटिंग? क्या आप लोग लिखते हैं कुछ या बस सुनते हैं? डू यू ऑल ऑल्सो राइट माई डियर विथ मी? यस। क्या मुझे इसके आंसर मिल सकते हैं? फर्स्ट एमसीक्यू, और मैं हर क्लास में एमसीक्यू क्यों ला रहा हूँ? मुझे शौक है आपको टेस्ट करने का। मैं चाहता हूँ कि जो आपने पढ़ा है आप वो अप्लाई करो। जल्दी से बताएंगे, चलिए चलिए जल्दी जल्दी से, वी हैव इन्वेस्टेड लॉट ऑफ टाइम, जल्दी। अरे भाई, ऑक्सीडेटिव रिडक्टेस, Sorry sir, oxygen reductase. क्लीवेज ऑफ वाटर, बॉन्ड फॉर्मेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। कितना टाइम लगता है ये करने में? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है? अरे नॉन कॉम्पिटिटिव है तो क्या होगा? Km remains the same, Vmax decreases, ग्लाइकोलिसिस हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज कन्वर्ट कराता है, ग्लूकोकाइनेज इन लिवर, हेक्सोकाइनेज इन टिश्यू। पाइरुवेट टू असाइल कोएंजाइम में कौन डेवलप करता है? लैक्टेट तो कहां से आया? हेक्सोकाइनेज कब से ये करने लग गया? पाइरुवेट काइनेज से तो पाइरुवेट बनता है। ऑर्निथीन कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है? सिट्रुलीन, सिट्रुलीन मैलिएट। नॉट एन इंटरमीडिएट, नहीं है। मैलेट है, मैलानाइल कोएंजाइम में करके कुछ होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम में करके होता है, राइट, जिसमें विटामिन B5
पैंटोथेनिक एसिड ट्रांसफर करता है। ये थोड़ी होता है, बाकी सब तो होते हैं। Total ATP produced is 36 to 38, but ideally it is 30 to 32 as per new biochemistry. B7 acts for the decarboxylation reaction, while B6 converts decarboxylation. Pyridoxal as for dehydrogenase and decarboxylation reaction. PLP. FAD is of vitamin B2. Presence of sugar is confirmed by biuret test. प्रोटीन के लिए, सुडान रेड ऑयल के लिए है, बेनेडिक्स कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, निनहाइड्रेन रिड्यूसिंग शुगर के लिए है, नहीं प्रोटीन के लिए, तो बेनेडिक्ट ही होगा ना इसका राइट आंसर, क्योंकि कार्ब्स के लिए है। जैसे एक एमसीक्यू सॉल्व करो 10 सेकंड से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए था, ये ऐसे एमसीक्यू थे और ये तो मैंने इतने इजी लाए थे, फिर भी आपको इतना टाइम लग रहा है। दैट मीन्स आप लोगों का रिवीजन वेरी वेरी पुअर। मैं ताने नहीं मार रहा, आई एम नॉट अ हिपोक्रिट, मैं क्रिएटिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करता हूं। आपको और 70% मेहनत करने की जरूरत है। आप लोगों ने कम मेहनत करी है, इस बात को आप नोट करिएगा। आई एम नॉट वन ऑफ दोज टीचर्स जो मोटिवेट करेगा, जो वो करेगा कि नहीं नहीं कर लोगे, हो जाओ। आई वेरी ब्लंट, करो नहीं तो नहीं हो पाएगा, सिंपल। 70% मेहनत की जरूरत है आप लोगों को। आई होप जब मैं इस क्लास को 3 महीने बाद एंड करूं, तब मैं कहूं कि बस 7% मेहनत की जरूरत है। आप ये डिफरेंस लाए इस 3 महीने में। Biuret test is for amino acids, polysaccharides, starch, right? Amylose and amylopectin. Basic unit of protein, amino acids, derived lipids, lecithin phospholipid है. Triglycerides are not derived lipids, they are simple lipids. Fatty acids are derived lipids. Essential and non-essential. Essential amino acid में आपके आते हैं A, V, HIL, MPTT. Alanine, valine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, proline, tryptophan, threonine. टायरोसिन नहीं है ये, टी फॉर टायरोसिन नहीं है, ये टायरोसिन नहीं है, ट्रिप्टोफैन एंड थ्रियोनिन है ये दोनों टी। तो क्या है इनमें से कोई है? ग्लाइसिन इज नॉन एसेंशियल, लाइसिन इज एसेंशियल, सेरीन इज नॉन एसेंशियल, एलेनाइन इज नॉन एसेंशियल। सिर्फ लाइसिन ही है, राइट? अर्जिनिन, वैलाइन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, तो ये लाइसिन ही है जो एसेंशियल है, बाकी सारे नॉन एसेंशियल है। सुडान रेड, ऑरेंज रेड, नाम में यह सुडान रेड डाई ऑरेंज रेड कलर देता है। थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लूं बिफोर वी एंड द सेशन, बिकॉज मैं चाहता हूं आप जल्दी जल्दी से मेरे साथ एक बार रिवाइज करते चले। बायोकेमिस्ट्री में आपके पास अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास होते हैं एलिफैटिक कंटेनिंग ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, गावली। एरोमेटिक होते हैं जिसमें ट्रिप्टोफैन, इंडोल कंटेनिंग टायरोसिन, फिनाइलएलानिन। देन आपके पास होते हैं पॉजिटिवली चार्ज जिसमें हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन। नेगेटिवली चार्ज aspartic acid, glutamic acid. Uncharged asparagine, glutamine. Alcohol containing serine and threonine. Sulfur containing cysteine and methionine. मिथियोनिन में थायोईथर होता है, सिस्टीन में सल्फाहाइड्रिल ग्रुप होता है। अच्छा, एक और अमीनो एसिड है जिसको हम सेलेनोसिस्टाइन कहते हैं, सेलेनोसिस्टाइन कहते हैं, आप लोगों ने सुना है वो? पायरोलाइसिन एंड सेलेनोसिस्टाइन। आपके कितने अमीनो एसिड है टोटल, ये बताएंगे मुझे? कितने अमीनो एसिड है टोटल? हाउ मेनी अमीनो एसिड्स डू वी हैव?
20 है, 22 है, ठीक है, 22 क्योंकि तो रिसेंटली ये 15 किसने लिखा है? कौन है ये जिसके लिए 15 अमीनो एसिड? आशीष पटेल। 15 अमीनो एसिड है हमारे पास माय डियर। अरे भाई 20 अमीनो एसिड है और जिसमें से 2 और ऐड हुआ है सेलेनोसिस्टाइन। क्या लगता है सेलेनोसिस्टाइन में सल्फर होगा? सिस्टाइन में सल्फर है तो सेलेनोसिस्टाइन में होगा? नहीं होता है। सेलेनोसिस्टाइन लैक्स सल्फर। उसमें सिस्टाइन वर्ड तो है क्योंकि उसमें पूरा बैकबोन सिस्टाइन का है, बट वो सल्फर की जगह सेलेनियम ग्रुप है, तो सल्फर को डिस्प्लेस करके सेलेनियम बैठता है, इसलिए वो सेलेनोसिस्टाइन है। ठीक है। और पायरोलाइसिन एक और अमीनो एसिड है। तो 20 में आपके पास ग्लाइसिन, एलानाइन, वैलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ये एलिफेटिक अमीनो एसिड है। इमिनो में आपके पास प्रोलीन है, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, थ्रियोनिन आपके पास, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलानाइन आपके पास एरोमेटिक अमीनो एसिड है। एलिफेटिक, एरोमेटिक, इमिनो हो गया। एसिडिक में आपके पास अस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड है। बेसिक में आपके पास हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन है। अमाइड कंटेनिंग में एस्पारेजिन, ग्लूटामाइन है। सल्फर कंटेनिंग मेथियोनिन, सिस्टीन है, जिसमें मेथियोनिन है थायोईथर ग्रुप एंड सिस्टीन है सल्फाइड्रिल ग्रुप। एंड फाइनली हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग में सेराइन एंड थ्रियोनिन है। राइट, सो आर ऑल ऑफ दीज क्लियर टू यू? yes, histidine and arginine are semi essential. very good. एसेंशियल में आपके पास अर्जिनिन, वैलाइन, हिस्टिडीन वगैरह आ रहे हैं। एंड देन नॉन एसेंशियल में आपके पास बाकी सारे जो एवी हिल एमपीटीटी के अलावा वो सारे नॉन एसेंशियल है। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू रिमेंबर द सिंबल्स कि कौन सा अमीनो एसिड कौन से सिंबल से डिनोट होता है। चलो yes, is there a glitch now? Everybody can hear? Sure. Okay. एक्चुअली वो सिस्टम पे लोड आ गया होगा ना, 1.5 घंटे से ज्यादा ना वो सिस्टम लोड हो गया। ओके, सो आर दीज अमीनो एसिड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पूरी क्लास में तो नहीं हुआ ना ग्लिच? यस, वर यू एबल टू हियर द एंटायर क्लास? चलो ठीक है। Histidine has a pKa near to blood pH. That is why it is important in a protein buffer. अगर पूछे कि प्रोटीन बफर में कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है तो वो हिस्टिडीन होता है। हेमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है तो वो ग्लाइसिन होता है। हिस्टामाइन के उसमें कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है फॉर्मेशन में तो वो हिस्टिडीन होता है, विच इज डी कार्बोक्सिलेटेड। एपिनेफ्रीन के सिंथेसिस में कौन सा यूज होता है तो वो टायरोसिन होता है। मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन के इसमें कौन सा अमीनो एसिड यूज होता है तो वो ट्रिप्टोफैन होता है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस, you must remember this. Yes, are we all clear till here? Primary, secondary, tertiary, quaternary structures of a protein.
अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीट्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीट्स सुना है हमने? Quaternary hemoglobin is an example of quaternary structure having two alpha, two beta chains. Edman's method, phenyl isothiocyanate. Sanger's method, dideoxynucleotide, 1F24DNB, 2,4-dinitrobenzene, dimethyl amino naphthyl sulfonyl chloride, dancyl chloride. All are protein sequencing methods. अभी हमने पढ़े वो. Cyanogen bromide is used for activation of methionine. Trypsin catalyzes lysine and arginine. Trypsin जो होता है, it is a very important, trypsin, they are very, very famous hydrolyzing or catalyzing agents. So it can catalyze lysine or basic amino acid. Trypsin catalyzes basic amino acids. C terminal of basic amino acids. N टर्मिनल पे काइमोट्रिप्सिन करता है, C टर्मिनल पे ट्रिप्सिन करता है, ये इंपॉर्टेंट है. काइमोट्रिप्सिन हाइड्रोलाइजेज ऑन N टर्मिनल ऑफ अमीनो, दो होते हैं ना, C एंड N टर्मिनल. C टर्मिनल पे कार्बोक्सिल होता है, N टर्मिनल पे अमाइन होता है. सो ट्रिप्सिन C टर्मिनल पे तोड़ता है किसी भी अमीनो एसिड को, और काइमोट्रिप्सिन N टर्मिनल पे तोड़ता है किसी भी अमीनो एसिड. ओके. बायोरेट्स टेस्ट, कॉपर सल्फेट यूज होता है, पर्पल कलर. मिलन्स टेस्ट फॉर टाइरोसिन. xanthoprotic test for, who is this? Vikas, please mute, my dear. NMR and X-ray are also used for protein structure determination. Krebs cycle, glycolysis cycle. कितने एटीपी बनते हैं, कहाँ जाते हैं, कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व है, कौन से स्टेप्स इरिवर्सिबल है, 1, 3, 10. अच्छा, ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, व्हाट इज ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? क्या आप मुझे इन सब का डिफरेंस बता सकते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स. ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना टू फॉर्म ग्लूकोज. This is clear to all of you. I'm happy. And what is shunt pathway? HMP या shunt pathway क्या होता है? जैसे कोरीज साइकिल में आपका लैक्टेट होता है, वैसे HMP shunt क्या होता है? हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे. पेंटोस फॉस्फेट पाथवे. वेरी गुड. इसमें आपका ग्लिसरल्डिहाइड, फ्रुक्टोज, सेडोहेप्टुलोज, काफी ज्यादा शुगर्स फॉर्म होता है. एंड इसमें मोस्टली एक शुगर वेरी गुड अमित, एक शुगर बनता है जिसको हम राइबोज शुगर कहते हैं. वेरी गुड रतिकांता. इट्स एन ऑल्टरनेट पाथवे टू ग्लूकोज सिंथेसिस. एक्सेलेंट कीरी. ग्लूकोज इट्स अ लोकेशन इन द साइटोसॉल. क्या बात है. मतलब अगर आप लोगों की साइकिल स्ट्रॉन्ग है, यहां से तो आपने धार 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 सवाल दिया, अब तक क्यों नहीं दे रहे थे? तो
अब तक क्यों नहीं दे रहे थे फिर लोग? ऐसा है कि मुझे थोड़ी डांट लगानी पड़ी तो आप दी। एंजाइम्स में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, माइकलिस मेंटेन प्लॉट, इनहिबिशन, Km value and affinity of an enzyme, competitive, uncompetitive, non-competitive, allosteric, feedback, suicidal inhibition, simple, compound and derived lipids. अच्छा, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या डिफरेंस है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या डिफरेंस है? Saturated fatty acids do not have a double bond, while unsaturated have a double bond, like oleic acid, linoleic acid, linolenic acid, arachidonic acid pathway. याद आया? LOX, CROX, lipoxygenase cyclox, yes, 21 carbon. Arachidonic acid 21 कार्बन का होता है या 19 कार्बन का होता है? 19 का एंड्रोस्टेन होता है। अराचिडोनिक एसिड 20 कार्बन का होता है। गोनेन 17 कार्बन का होता है। ईस्ट्रेन 18 कार्बन का होता है। प्रेग्नेन 21 कार्बन का होता है। इसलिए मैंने बोला मैं छोटी से छोटी मिस्टेक पकड़ लेता हूँ। कौन था वो जो 21 बोल के? हाँ, अमित गुप्ता। मैं पकड़ लेता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो इतने सारे कमेंट आए तो देखना भूल जाए। 20 कार्बन एराचिडोनिक एसिड, 21 इज प्रेग्नेन, कोलेस्टेरॉल इज 27, करेक्ट। गुड। लिखू, मतलब मेहनत करवानी है ना आपसे। आज तो सबसे पहली क्लास आप लोगों की है, तो आई एम वेरी फ्रेश टुडे। वरना यूजुअली आपकी सेकंड या थर्ड क्लास होती है जब एनर्जी लो हो जाती है। अब तो लिख देंगे, अब तो एनर्जी हाई है। डन। ये किसी ने मुझे मैसेज कराया, सर काइंडली शेयर द नोट्स लिंक। अब मैं इनका क्या करूं? क्या करूं मैं इनका, बताओ। इनको सारे मैसेज पढ़ने का टाइम है, लेकिन ये ग्रुप पे जो पयाम सर ने मैसेज करे हैं कि नोट्स के लिए ये है, लेक्चर के लिए ये है, टेस्ट के लिए ये है, उसका टाइम नहीं है। अब मैं नहीं रिप्लाई करूंगा ऐसे मैसेजेस का, मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करता। जब मैंने कोई चीज बता दी है दोबारा सेम चीज पूछूंगा, बताइए। मतलब इनका ध्यान नहीं है पढ़ने में, या तो इनका ध्यान कहीं और है। तो अब इनको ये पनिशमेंट होगी कि इनको रिप्लाई नहीं मिलेगा। गलत बात है ना। Yes, we will do. Yesterday we did, by the way, some diseases. Tay-Sachs disease, Gaucher, Farber, alkaptonuria. भूल गए आप रतिकंता? कल करी थी ना हमने। Yes, Fabry, Farber, Gaucher, Tay-Sachs, alkaptonuria, SCID, maple syrup. Yes, correct. इसमें भी है, इसमें है, एंड में है। यूरिया देखो, माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल दोनों में हो रही है, लीवर में। ये देखो, फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, मैपल सिरप, अल्फा कीटो डिहाइड्रोजनेस,
arginemia, arginosuccinate, alkaptonuria, black urine, homogenticin oxygenase, albinism, tyrosine monooxygenase. राइट, ये डिफेक्टिव एंजाइम है और ये मेडिकल कंडीशंस है. ये फर्स्ट टेबल और फोर्थ कॉलम, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम याद रखना है आपको. एंजाइम्स इन डायग्नोसिस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दिस, राइट. कौन सी एंजाइम कौन से कंडीशन में डायग्नोसिस में, कौन सी एंजाइम जेनेटिक, जैसे टेसैक्स, हेक्सोजामिनेडेज, न्यूरो Niemann-Pick sphingomyelinase, heart nerve disease, tryptophan, albinism, monooxygenase, वैन गेर्की ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. अच्छा, वैन गेर्की के साथ साथ और भी कुछ डिजीज है. नो प्रॉब्लम, वेलकम. वैन गॉर्की, पोम्पे, कोरी, एंडरसन, हर, मैकार्डले, हर, तारुई. Taru is because of phosphofructokinase. मैकार्डले muscle phosphorylase. Hers disease liver phosphorylase. अब ये हर डिजीज क्या है, इसमें क्या होता है, ये टाइम गया. अगर ये क्यूरियोसिटी थी तो वो तब पढ़ना था जब बैचलर्स में थे, डिप्लोमा में थे. अब फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कट्टू पढ़ो. उसके बाद टाइम हो तो डीप में घुसना कि मैकार्डले में क्या होता है, मसल फटीग होता है, फॉस्फोराइलेज नहीं बन पाता, ये सब चीजें तब पढ़नी. अब ना आपके पास उतना टाइम है पढ़ने का, ना उतनी जरूरत है आपको अभी पढ़ने. टारुई डिजीज, TARUI, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. एंडरसन्स डिजीज, कोरीज डिजीज. लाइजोसोमल स्टोरेज डिजीज होती है जेलवेगर्स डिजीज. जेलवेगर सिंड्रोम को लाइजोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं. वैन गॉर्की आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेस. कोरीज डिजीज, डी ब्रांचिंग. एंडरसन ब्रांचिंग एंजाइम. अच्छा, आपका होमवर्क है कि फोब्स डिजीज किसको बोलते हैं, ये ढूंढ के आना है. हिंट दे रहा हूं, कोरी और एंडरसन में से किसी एक डिजीज को फोब्स डिजीज कहते हैं. ठीक है, फोब्स डिजीज, FORBES. तो ये पढ़ के आना, फोब्स डिजीज. जो भी होमवर्क देता हूं आपके भले के लिए. इफ यू हैव टाइम यू डू, इफ यू डोंट हैव टाइम यू डोंट डू. इट्स टोटली अप टू. सेरोलॉजिकल टेस्ट ऑलरेडी हमने देखी, राइट. फ्रेहीज टेस्ट, लिम्फोग्रेन्युलोमा, आउचटरलनी स्मॉल पॉक्स, शिक टेस्ट, डिक टेस्ट, VDRL, विडाल, मैंटॉक्स टेस्ट, वैजरमैन, हुम्स टेस्ट, रोज वॉलर टेस्ट, हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट, रिया और रिड. रिड आपका होता है इन्फ्लुएंजा में और रिया होता है HCG प्रेगनेंसी में. राइट, दोनों इसलिए साथ ही में दिए हैं क्योंकि रिड और रिया में बहुत कंफ्यूजन होता है. लास्ट आपको ये याद रखने हैं, म्यूरेक्साइड टेस्ट फॉर यूरिक एसिड, प्यूरिन, जेव्स टेस्ट फॉर क्रियाटिनिन, रोथेरास्ट. ये पूरा यहां से ये लेके यहां तक ये सारे 4 to 8. म्यूरेक्साइड, यूरिक एसिड, जेव्स टेस्ट, क्रियाटिनिन, रोथेरास्ट एंड सेलेविनॉव्स टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज. और एक और टेस्ट होती है हे और पीटरकॉफ. हे और पीटरकॉफ आपकी बाइल सॉल्ट्स के लिए होती है. हे और पीटरकॉफ बाइल सॉल्ट्स के लिए होती है. हे टेस्ट और पीटरकॉफ टेस्ट. हे, पीटरकॉफ, बाइल सॉल्ट्स, कारप्राइज विटामिन A, सेलेविनॉफ एंड रोथेरा कीटोन बॉडीज, जेव्स क्रियाटिनिन, म्यूरेक्साइड यूरिक एसिड. और फाइनली विटामिन का ये टेबल. इस टेबल को आपकी कॉपियों में होना ही चाहिए. ये एक सदाबहार टेबल है.
E, which is a fat soluble vitamin having a coumarin ring, antioxidant होता है ये. Tocopherol इसका दूसरा नाम है. Vitamin A is a retinol. Beta ionon is a ring. If it is absent, it is causing night blindness and xerophthalmia. Vitamin C is ascorbic acid. Furazolidine ring है, स्कर्वी हो जाता है यानी गम से खून आने लगता है. D2 ergocalciferol, D3 cholecalciferol, steroid only vitamin containing a steroid ring. Rickets in children and osteomalacia in adults. B and C are water soluble. B1 में thymine, thymine pyrophosphate, thiazole, beriberi. ड्राई बेरी आपका CNS को अफेक्ट करता है, वेट बेरी आपका CVS को अफेक्ट करता है. B2 FMN and FAD cofactor, riboflavin, isoaloxacin, retinal damage. B3 nicotinic acid, NAD, pellagra, pyridine ring containing. B4 choline and serine, जो कि आपके derived lipids में आते हैं. B5 pantothenic acid, which is beta mercaptoethylamine for transferring acyl group, like succinyl coenzyme A, acetyl coenzyme A. B6 pyridoxine, which is in decarboxylation reactions given with isoniazide. Deficiency causes peripheral neuropathy. B7 vitamin H, biotin, imidazole containing dermatitis, inflammation of the skin and skin dermatological conditions. B9 megaloblastic anemia. B12 pernicious anemia. B12 has cyanocobalamin ring, which is a cobalt containing vitamin. B9 folic acid, which is an antagonist, is methotrexate and sulfonamides. K phylloquinone, menaquinone and K3 menadione involved in blood clotting. अगर ये विटामिन का टेबल आप लोगों ने अच्छे से पार कर लिया माय डियर, देन तो बल्ले बल्ले. Yes, B5 is for burning fit syndrome. Yes, B4 भी होता है. वेरी गुड. कोरीज डिजीज को फोक्स डिजीज भी कहते हैं. जली को राख कहते हैं, बुझी को राख नहीं, क्या था वो? जली को समथिंग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. सम डायलॉग. G6PD डेफिशिएंसी क्या होता है? G6PD देखो अफ्रीकन में मोस्टली होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस. तो जब ये एंजाइम नहीं होती ना, तब आपका जो आरबीसीज है ना, वो कम होने लगते हैं. देयर इज अ हेमोलिसिस. सो बिकॉज ऑफ G6PD डेफिशिएंसी इट लीड्स टू हेमोलिटिक अनीमिया, जहां पे आरबीसीज छोटे होने लगते हैं और कम हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं. सो दैट इज G6PD. मोस्टली ड्रग्स लाइक क्लोरोक्विन एंड ऑल हैव G6PD डेफिशिएंसी. जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं. अमित, अपना कैमरा ऑन करो और माइक ऑन करो जल्दी. दीपक पारेख ने भी आग का है. दीपक पारेख, अपना कैमरा ऑन करो और माइक ऑन करो. जब पता है कि पयाम सर इस तरीके की फालतू बातों पे पूछेंगे, आपको वाइवा लेंगे, फिर भी तो अमित आप सैंडो पहन के बैठे हैं, गुड, चिल बैठे हैं. तो मुझे ये बताइए थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कौन सा होता है बॉडी में, सिंस आप इतने चिल है. सर ऑन फील्ड वर्क. कोई बात नहीं, म्यूट करके बोलिए या माइक आप टाइप करिए फील्ड वर्क पे, तो क्या होगा. यस अमित गुप्ता. अरे आपकी आवाज नहीं आ रही माय डियर. आप किसी को आवाज आ रही है अमित की? नहीं आ रही है. आप माइक म्यूट इस पे लिख दीजिए, चैट बॉक्स पे कर दो. हाइपोथैलेमस इज अ थर्मोरेगुलेटरी सेंटर. बिल्कुल, वेरी गुड. ठीक है, अब तो मैंने तुम्हें इजीली छोड़ दिया. तो दैट इज इट फॉर टुडे. विशिंग यू ऑल गुड लक. 2 घंटे हो गए. तो अब शाम की क्लास है 6 to 7:30, तो जरूर आना उस क्लास में.